Hello, students. Welcome to the class of Pharmaceutical Chemistry 2. And I am your teacher from Guru Ramdas College of Pharmacy, Malod. Now, coming to the next chapter of Pharmaceutical Chemistry 2 is skeletal muscle relaxants. What are the skeletal muscle relaxants? What kind of drugs are used for as a skeletal muscle relaxants? Come to the first definition. The drugs which produce relaxation of skeletal muscles and the tone of the muscles are called skeletal muscle relaxants. That is, जो ड्रग्स स्केलेटल मसल्स को काम करते हैं, उन्हें शांत करते हैं, फ्री फ्रॉम एनी टेंशन एंड एंग्जाइटी या रिलैक्स करते हैं. और यहाँ पे टोन का मतलब लिया गया कि टोन ऑफ मसल्स क्या ड्रग यहाँ पे कैसे करते हैं, क्या करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ अ पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, मेंटेनेंस पोस्चर एंड बैलेंस एंड कंट्रोल द प्रॉपर फंक्शन ऑफ ऑर्गन सिस्टम. पोस्चर का मतलब होता है द पोजीशन इन विच समवन होल्ड्स देयर बॉडी व्हेन स्टैंडिंग और सिटिंग. टोन का यहाँ पे क्या काम होता है, कंट्रोल द सेंसरी मसल्स विच मेजर्स द स्ट्रेस. सो द रिलैक्सेशन ऑफ स्केलेटल मसल एंड द टोन ऑफ मसल्स टुगेदर और कॉल्ड स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स, जो ड्रग्स का काम होता है इनको कवर करने का. देयर आर टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एजेंट्स which bring about skeletal muscle relaxant. Different categories है. One category of act by interrupting the transmission of the nerve impulse at the neuromuscular junction. They are called neuromuscular blocking agents. The create type of drugs belong to this class. create type of drugs जो है neuromuscular blocking agents के अंदर आते हैं. create का मीनिंग होता है बिटर, या हम कह सकते हैं टॉक्सिक, लाइक अल्कलाइन क्रेन या ट्यूबोक्रेन जो हम यूज़ करते हैं. So these agents are further divided into subclasses. First, depolarizing agents, non-depolarizing agents. This category is discussed next chapter में. नेक्स्ट है अंडर कैटेगरी, जो उन्होंने दो कैटेगरीज बोले, तो सेकंड कैटेगरी कौन सी है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट की. इट इज़ अ सेंट्रली एक्टिंग टाइप, दैट इज CNS डिप्रेसेंट बोल सकते हैं. दे प्रोड्यूस द मसल रिलैक्सेशन बाय ब्लॉकिंग इम्पल्सेस एट इंटरन्यूरॉन्स ऑफ द पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क. पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, जस्ट सिंपल कह सकते हैं रिफ्लेक्स एक्शन दैट इन्वॉल्व्स एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स being transferred from one organ, from one neuron to other, from sensory neuron to motor neuron via at least one connection neuron in spinal cord, mainly at the paleocortex. paleocortex हमारा ब्रेन का पार्ट है, एंड सबकॉर्टिकल एरियाज ऑफ द ब्रेन. तो ये एज ए the action is brought about the depressing the central nervous system of muscle spasms. The skeletal muscle relaxants are used therapeutically in variety of conditions. skeletal muscle relaxants कहाँ पे यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल स्पॉन्डोलिटिस. स्पॉन्डोलिटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन इन स्पाइनल कॉर्ड, डिस्क सिंड्रोम, स्प्रेन्स, हेडेक एट्सेट्रा. Furthermore, because of the depressant effect of this class of compounds, they are useful in also insomnia and anxiety, tension and related conditions. क्योंकि इसके नाम में दिया हुआ है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स. रिलैक्सेंट्स को मोस्टली हम कहते हैं कि जो हमारी टेंशन को या एंग्जाइटी को दूर करता है. स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स आगे क्लासीफाई की गए इन दो ग्रुप्स में. फर्स्ट है ग्लाइकोल एंड कार्बामेट्स. फर्स्ट आ गया ग्लाइकोल एंड द कार्बामेट्स. टू यूजफुल ड्रग्स इन्वॉल्व फ्रॉम दिस क्लास आर मेफेंसिन. मेफेंसिन में की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. It occurs as a white crystalline powder with bitter taste, strongly water soluble and most soluble in alcohol. Solutions are stable to heat and can be sterilized by autoclaving. Drug is metabolized fast and hence give a brief duration of action. Action uses क्या है, given orally दिया जाता है, parenterally 0.1 to 1 mg dose. Mefensin injection is officially IP and is employed for quick action. The drug is mainly used for symptomatic relief of muscular spasms or cramps. Next है meprobamate. This drug is discussed under anti-anxiety category.
एंटी एंजाइटी ड्रग्स हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं जब हमने एंटी डिप्रेसेंट किया था। दैट इज चैप्टर 3। चैप्टर 3 में हमने एंटी एंजाइटीज किए हैं। वहाँ पे हमने मैप्रोबामेट किया है। वहाँ पे सबसे पहली ड्रग यही थी। वहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज़ भी दी गई हैं, स्ट्रक्चर भी दिया गया है, केमिकल नॉमेनक्लेचर भी दिया गया है। प्रॉपर्टीज़ थी इसकी जैसे कि अक्कर्स एज ए वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर विद बिटर टेस्ट, स्प्रैंगली सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, फ्रीली सॉल्युबल इन अल्कोहल और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। एक्शन और यूज़ क्या था इसका, गिवन एज ए ऑर्ली इन द फॉर्म्स ऑफ टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स। डोज इसका मैंशन था 0.4 to 1.2 ग्राम डेली। मोस्टली ये इंसोमेनिया, एंजाइटी, टेंशन की स्टेट में दिया जाता है। आल्सो गिवन एज एंटी कन्वल्जेंट और इन मस्कुलर स्पाजम्स। नेक्स्ट है बेंजोडाइजापीन डेरिवेटिव्स। बेंजोडाइजापीन डेरिवेटिव्स भी हमने वैसे तो एंटी एंजाइटी में किया है, तो यहाँ पे बस इनके बारे में थोड़ा थोड़ा दिया गया है क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर्स, केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल नॉमेनक्लेचर, उनकी प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं पिछले चैप्टर्स में। अब वहाँ से देख सकते हैं। द बेंजोडाइजापीन क्लास ऑफ कंपाउंड्स आर ऑलरेडी डिस्कस्ड अंडर एंटी एंजाइटी क्लास। ए फ्यू इंपॉर्टेंट ड्रग्स पोजेसिंग सीडेटिव्स, हिप्नोटिक, मसल रिलैक्सेंट एंड एंटी कन्वर्जेंट प्रॉपर्टीज आर गिवन बिलो। आप यहाँ पे बेंजोडाइजापीन की डेरिवेटिव्स की कुछ एग्जांपल्स पीछे चैप्टर में से लेके यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं अलग से, जब इसका अलग से क्वेश्चन आता है। कुछ ड्रग्स हैं जो हिप्नोटिक, सीडेटिव, मसल रिलैक्सेंट अपना शो करते हैं, उनकी एग्जांपल्स दी हैं। ये भी हमने सीडेटिव और हिप्नोटिक्स में भी इसके बारे में पढ़ा है, जैसे डायजापाम, क्लोरोडाइज तो पिछले चैप्टर से आप इसकी स्ट्रक्चर्स और नॉमेनक्लेचर या इसकी डिटेल में प्रॉपर्टीज़ आप वहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे इनके यूजेस और एक्शन मेनली दिया गया है। पहले क्लोरोडाइजा एपॉक्साइड्स हाइड्रोक्लोराइड, इट इज़ मेनली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी एंड टेंशन, मॉडरेट एंटी कन्वर्जेंट एंड स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। तो ये हमने एंटी डिप्रेसेंट के चैप्टर में पढ़ा था, वहाँ पे इसकी नॉमेनक्लेचर होगी और इसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी, वाटर सॉल्युबल है, नहीं है, अल्कोहल में सॉल्युबल है, तो डोज क्या मेंशन है आप वहाँ से देख लेना। नेक्स्ट है डायजापाम, ड्रग इज़ यूज इन कंट्रोल ऑफ एंजाइटी, टेंशन एंड मसल स्पाजम, also effective in controlling the convulsions in epilepsy, so it is known as anticonvulsant drug too. Oxazepam, anxiolytic agent, mild action on as a skeletal muscle relaxation, ये एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। डायजापाम को हमने सीडेटिव में भी पढ़ा है। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स, तो हम यहाँ पे अब न्यूरोमस्कुलर पहले स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स देखे थे। नेक्स्ट है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, जो उसकी दो डिफरेंट कैटेगरीज आ गई थी, तो उसमें से पहले न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स थी। एज these are the drugs that acting by interrupting transmission of nerve impulse at neuromuscular junction, इसकी डेफिनेशन हम पहले ही कर चुके हैं, इसके बारे में पढ़ लिया, स्टार्टिंग में पढ़ लें। थेरापेटिकली यूज़ कहाँ पे किया जाता है, सर्जिकल एनास्थीसिया टू प्रोड्यूस स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन, मतलब मोस्टली सर्जरीज में ऑपरेशन के टाइम पे ये एनास्थीसिया एज ए एनास्थीसिया दिया जाता है। स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन इज ब्रॉट आउट टू सिमिलर टू द अल्कलॉइड ट्यूबोक्रेन एंड हेंस द एक्शन इज रेफर्ड एज क्यूराफॉर्म और क्यूरियामेमेटिक। अल्कलॉइड ट्यूबोक्रेन मैंने पहले भी आपको इसकी एग्जांपल बताई थी। ये कुरियर ड्रग्स होती हैं। सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफिशियली इन फार्माकोपियर गिवन बिलो, पहले ट्यूबोक्रेर और क्रेरियन क्लोराइड, द अल्कलॉइड्स obtained from crude courier and is purified, ठीक है बिल्कुल। प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, occurs at white to yellowish white powder, odorless and water soluble, aqueous solutions are stable, are given as a anesthesia for skeletal muscle relaxation. Drug is given parenterally route, that is 0.1 to 0.3 mg per kg dose, maximum up to 25 mg. User strength of injection is 10 mg per ml. Next है
succinyl chloride succinyl choline chloride. Properties: it occurs as white crystalline powder with salty taste, freely soluble in water, slightly soluble in alcohol. Aqueous solution, unstable in alkaline medium. ये भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसका क्या है, इंट्रावेनियस रूट. डोज क्या है 20 to 80 mg. डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट है. शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बिकॉज ऑफ फास्टर हाइड्रोलाइसिस. नेक्स्ट है डेकामेथोनियम ब्रोमाइड. It is colorless, odorless powder soluble in water and alcohol. Aqueous solution is comparatively slow. It produces skeletal muscle of relaxation, especially in combination with barbiturates. More potent than tubocurarian and employed in 500 microdose. Galamine triethioidide. यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर और नॉमेनक्लेचर दिया गया है, देख सकते हैं आप सब. Properties and uses. It is amorphous powder, bitter to taste and very soluble in water but sparingly soluble in alcohol. Aqueous solution is acidic in nature. It is employed as muscle relaxant in surgical operations. It is given by IV route in 1 mg per kg body weight. तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है. तो इसके साथ ही हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 8 ट्रैंक्विलाइजिंग एजेंट्स. नेक्स्ट है ट्रांक्विलाइजिंग एजेंट्स. इस टर्म को हम पहले चैप्टर्स में भी कई बार पढ़ चुके हैं, लाइक जैसे एंटी डिप्रेशन में भी ये नाम यूज़ किया गया है, एंटी साइकोटिक में भी किया गया है. ये टर्म हमने सीडेटिव हिप्नोटिक्स में भी पढ़ी है, एंटी साइकोटिक में भी आ गई. जनरल एनेस्थीसिया में भी हमने पढ़ा था थोड़ा बहुत इसके बारे में, वहाँ पे एज ए प्री एनेस्थेटिक दिया जाता है जैसे. और एंटी डिप्रेशन में तो इसके बारे में पढ़ा ही पड़ा है. तो जैसे इसकी डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, ट्रांक्विलाइजिंग एजेंट्स आर ड्रग्स विच प्रोड्यूस सेलेक्टिव सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन. तो इनका सीधा सीधा जो काम होता है, कहाँ पे करना होता है, CNS पे एक्ट करते हैं. क्या काम करते हैं ये, रिड्यूस द एक्साइटेशन. हमारे फंक्शंस को उनको शांत करना होता है. हमारी जो एक्साइटमेंट्स हो जाती हैं, जैसे कि हम बहुत ज़्यादा सैड हो गए, जब बहुत ज़्यादा हंसने लग गए, जो भी हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है, उसको ठीक करने के लिए रिड्यूस एक्साइटेशन, एजिटेशन, एग्रेसिवनेस, बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है, वरी एंड टेंशन एंड काम द पेशेंट. These types of agents are also called as neurosedative or calming agents. Neurosedative और calming agent क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमने sedative में भी इसके बारे में पढ़ा था. Tranquilizing action is considered to take place at subcortical region of the brain. ब्रेन के कौन से पार्ट में ये अपना एक्शन शो करते हैं, subcortical region. The drugs produce sufficient sedation इफेक्ट इनका अच्छा देते हैं and bring about a calming, पेशेंट को शांत करते हैं, एंड न्यूरोसेडेटिव एक्शन. दिस एक्शन इज बिलीव्ड टू टेक प्लेस आइदर बाय इंटरफेयरिंग इन बायोसिंथेसिस, अपटेक, मेटाबॉलिज्म एंड साइट ऑफ एक्शन ऑफ द बायोजेनिक अमीन्स ऑफ द ब्रेन. इनका एक्शन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, जो ब्रेन्स में हमारे बायोजेनिक अमाइंस होते हैं ज़्यादा ही वहाँ पे एक्ट करते हैं, या फिर उनको आगे रिलीज़ नहीं होने देते, उनकी बायोसिंथेसिस में इंटरफेयर करते हैं, उनकी अपटेक किसी भी और ब्रेन के जो और न्यूरॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं उनसे उनकी अपटेक नहीं होने देते, वहाँ उनको लेने नहीं देते हैं, मेटाबॉलिज्म को रोकते हैं. द ड्रग्स फ्रॉम दिस क्लास दस हैव अ हिप्नोटिक सीडेटिव मसल रिलैक्सेंट एक्टिविटी. तो हिप्नोटिक और सीडेटिव में हमने इसके बारे में पढ़ाई है. तो the tranquilizing agents can be classified into 3 categories. First है Rauwolfia and their alkaloids, phenothiazine class of compounds and miscellaneous compounds. तो पहले हम देखने जा रहे हैं Rauwolfia and its alkaloids. रूट्स ऑफ क्रूड ड्रग पाउडर ऑफ प्लांट Rauwolfia serpentina. Rauwolfia में कहाँ से मिलता है, इसका बोटेनिकल नेम है Rauwolfia serpentina. ये रूट्स का ये क्रूड पार्ट होता है, वहाँ से हमें ये ड्रग मिलता है, पाउडर की फॉर्म में मिलता है. और लेटर स्पीशीज ऑफ Rauwolfia हैव बीन यूज्ड इन द सेंचुरीज ऑफ इन वेरियस डिजीजेस. इनके क्रूड पार्ट जो रूट्स होते हैं ना, उसको हम पाउडर फॉर्म में बनाते हैं
फिर उसका हम डिजीज़ के लिए आगे यूज़ करते हैं, लाइक इंसैनिटी, हाइपरटेंशन एंड इंसोमनिया. देयर आर नंबर ऑफ अल्कलॉइड्स इन रेवल्फिया like rezapine. Crude drug, its purified alkaloid that is rezapine. Related synthetic analogs are nowadays used in the variety of conditions like agitated state in schizophrenia, psychotic disorders, insomnia and hypertension. तो जो इसके अल्कलॉइड्स कौन कौन से आ जाते हैं, रेजरपिन, रेजरसिनामिन मोस्टली यूज़ किए जाते हैं. ये ड्रग्स सेंट्रली एक्ट करते हैं, ब्रेन के बायोमिन्स का जो लेवल है उनको डिक्रीज़ करके सेंट्रली अपना एक्शन शो करते हैं. फर्स्ट है रेजरपिन, IB, BP, USP ऑफिशियली मेंशन है, इसका स्ट्रक्चर गिवन है. तो इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं. पेल बफ येलोइश पाउडर, ऑर्डरलेस, डार्कन्स ऑन एक्सपोजर टू लाइट, insoluble in water, slightly soluble in alcohol and ether, more soluble in chloroform and acetic acid. Solutions darken and exposure to light. Action and uses. डोज कितना दिया गया है, पहले कितनी मेंशन की गई है, कितना दिया जाता है डोज के फॉर्म में, 0.5 to 2 mg डोज एनजाइटी के लिए और टेंशन के लिए, 3 to 5 mg ऑरली फॉर साइकोटिक केसेस के लिए. अगर हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं तो 5 to 10 mg. हाइपरटेंशन में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, टैबलेट्स की फॉर्म में भी देते हैं. नेक्स्ट है फेनोथायाजिन डेरिवेटिव्स. फेनोथायाजिन, लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेंट ड्रग हैव बीन डेवलप्ड फॉर द फेनोथायाजिन क्लास. नंबर ऑफ ड्रग्स दिए जा रहे हैं. बिसाइड ब्रिंक ट्रैंक्विलाइजिंग, मतलब इसका ट्रैंक्विलाइजिंग इफेक्ट के अलावा ये और क्या करते हैं, एज एनेस्थेटिक यूज़ किए जाते हैं, एनाल्जेसिक भी यूज़ किए जाते हैं फेनोथायाजिन डेरिवेटिव्स, और अपना सीडेटिव एक्शन भी शो करते हैं. These drugs are useful in the quieting psychotic patients, उनको शांत करने के लिए, और मेजर मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए और इमोशनल डिसऑर्डर्स के लिए. नंबर ऑफ ड्रग्स इनकी फेनोथायाजिन डेरिवेटिव्स की आ जाती है जो एज ए एंटी एमेटिक और एंटी हिस्टामिनिक भी यूज़ किए जाते हैं. कुछ इन्होंने एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे क्लोरोप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड, फ्लूपेराजिन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरोफेराजिन मैलेट, थायोराइडाजिन हाइड्रोक्लोराइड. कुछ क्लासेज है जो हम ऑलरेडी चैप्टर 4 में डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ से आप इनकी प्रॉपर्टीज़ देख लेना, इनकी केमिकल स्ट्रक्चर, इनकी नॉमेनक्लेचर, एक्शन एंड यूजेज, इतना डोज किस ड्रग का दिया जाता है वहाँ से आपको मिल जाएगा. तो इसका लेक्चर हम पहले लगा चुके हैं, चेक कर लेना. मिसलेनियस कंपाउंड्स, हैलोपेरिडोल, ड्रोपेरिडोल आ गया. नेक्स्ट है थायोथिक्सीन्स. ये थायोथिक्सीन्स एंटीसाइकोटिक में हम पढ़ चुके हैं. हाइड्रोक्सीजीन हाइड्रोक्लोराइड, इफेक्टिव ट्रांसक्लूजिंग एजेंट ऑफ सिप्नोटिक सीडेटिव हिप्नोटिक टाइप है. Less potent than phenothiazine class of drug and mild antihistaminic and anticholinergic activity. Lithium carbonate properties and uses. Inorganic compound है, white crystalline powder, sparingly soluble in water, active orally, given in the form of tablets, used in the treatment of mania, related cases of mental and manic depression, tranquilizing actions also. Dose is up to 1.6 gram daily in the divided dose. तो ये जो सभी ड्रग्स हैं, कुछ हम पिछले चैप्टर्स में, हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, कुछ यहाँ पे दिए गए हैं दोनों ही चैप्टर के, चैप्टर 7 और चैप्टर 8 के. तो वहाँ से आप उनकी प्रॉपर्टीज़, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सब ले सकते हैं. लेक्चर्स हमारे आपको पहले दिए जा चुके हैं. तो यहाँ आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ओवर होता है. थैंक यू वेरी मच.